हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस के इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर में जहां पे हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की 1 नवंबर 2024 की जजमेंट की विच टेक्स इनटू कॉग्निसेंस अ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स जो कि वेरियस स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन द पास्ट राजस्थान में भी हुआ है, जहां पे लोगों की प्रॉपर्टीज को डिमोलिश कर दिया गया था एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दीज पीपल वर claim to be accused of certain incidents of crime or crimes without really there being a proper case जो कि उनके अगेंस्ट चलाया जाए जिसके अंदर they are proved to be guilty। तो इसी पूरे इशू को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट पास की। Now what is very critical in this judgment is not only इसके जो कुछ पॉइंटर्स हैं वो आपने याद रखने हैं, understanding what the judgment is all about, what are certain things that the Supreme Court has pointed out, but very importantly in its key observations there are a number of constitutional values, articles and rights जिनको Supreme Court ने underline किया है and therefore not just for mains or optional, prelims के perspective से भी इस तरह की जो judgments है बहुत ज़्यादा important हो जाती है। Why? Because oftentimes you may get this question asked, right? इनके अंदर जो कुछ implicit arguments हैं, उनके ऊपर आपका जो है PYQs पूछे जा सकते हैं and often if you are not aware of these judgments, then you can miss out on these important answers। ठीक है, तो इसी को हम very quickly cover करेंगे, साथ ही मैं बताती जाऊंगी कि क्या क्या आप prelims के लिए भी, not just for your optional, right, not just for your Indian government and politics part, but even for prelims what are certain things that you can bear in mind, right? Now let's move forward। As you all know that 13 नवंबर 2024 को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फुल एंड फाइनल जजमेंट जो है आगे रख दी, जहां पे उन्होंने अंडरलाइन किया that demolition of properties of citizens, if it does not follow the due process, if it does not follow a certain set guidelines, then जो है ये ढंग से नहीं किया जा रहा है। एंड इस बुलडोजर जस्टिस को इस बेंच ने विच कंप्राइज्ड ऑफ जस्टिसेस BR गवाई एंड KV विश्वनाथन, उन्होंने बोला कि ऐसे जो एक्शंस हैं कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे संविधान के वैल्यूज एथोस के कंप्लीटली अगेंस्ट जाते हैं। Now while underlining this, now while you know they have said that it goes against the constitutional ethos, on what basis, है ना, क्या है जो कि प्रॉब्लम है with these actions which are being taken by the executive, by the state। तो 5 की चीजें हैं जो कि यहां पे याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट, जो कि अंडरलाइन करते हैं अगेन सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑल्सो इंडिया के। सबसे पहले, राइट, एंड नाउ अगेन हमें पता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स याद रखना है ना। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है? हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, एंड हमें पता है दैट सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है is one of the important parts of basic structure doctrine, and in fact इसी से derive हो रहा है the first key observation, which is that there is a severe need to curb executive power, right? Now the idea of separation of powers जो कि आगे रखा गया था by scholars like Montesquieu, उन्होंने क्या बोला था कि देखिए, अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने वोटिंग दे दी, गवर्नमेंट जो है इलेक्ट होके आ गई, दिस इज नॉट इनफ। कंटिन्यूअसली एक बाउंड्री मेंटेन करने की जरूरत है ताकि कोई एक ब्रांच, कोई एक इंसान, कोई एक ऑफिस ऑल इनकम्पसिंग पावर लेके कहीं डिक्टेटर ना बन जाए, डज नॉट टर्न इनटू अ डिक्टेटर। And therefore for this separation of powers was provided, wherein each branch of the government is allocated a specific space of performance, a specific sphere of functions, right, thereby divided into executive, your legislature and your judiciary। And keeping these principles in mind, the Supreme Court said that the executive here, the state, जब वो decide कर रहे हैं that हाँ जी, you know, they are picking and choosing very arbitrarily that if there are a bunch of properties which are possibly occupying a similar space,
इन अ पर्टिकुलर रीजन आप पिक एंड चूज कर रहे हो वहां पे कि हम इस इंसान की प्रॉपर्टी को जो है डिमोलिश कर देंगे, आप बाकी सबकी तो नहीं कर रहे हो, राइट। जहां पे इन्होंने क्या कहा कि ये जो आर्बिट्रेरीनेस है एग्जीक्यूटिव की, राइट, बाय डिसाइडिंग दैट दिस प्रॉपर्टी गेट्स टू बी अबॉलिश्ड is actually overstepping its boundaries, overstepping its sphere of functions। जहां पे ये एग्जीक्यूटिव का नहीं बल्कि अब एक एडजुडिकेटरी रोल में जो है आ गया है, जहां पे दे आर जजिंग, राइट, दे आर जजिंग दैट आप जो है अक्यूज्ड है, आपने गलत काम किया है एंड देयरफॉर योर प्रॉपर्टी डिजर्व्स टू बी डिमोलिश्ड एज अ पनिशमेंट, राइट। तो ये कहते हैं ये प्यूनिटिव एक्शंस प्रोनाउंस करना एग्जीक्यूटिव का तो काम है ही नहीं, इसके लिए तो जुडिशरी बैठी है, हमारा काम है एडजुडिकेट करना, राइट। सो बाय टेकिंग सच आर्बिट्ररी एक्शंस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू आर एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल of separation of powers, which is in fact a part of the basic structure doctrine, which at the end of the day, if the executive is free to do as they please, leading to arbitrariness, right, एक मेन आइडिया क्या होता है स्टेट का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, राइट, जहां पे पब्लिक ट्रस्ट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, एंड जब ये इरोड हो रहा है तो वी विल एंटर अ स्टेट ऑफ lawlessness, and this is something that we don't want happening, and therefore we want to curb this executive power which is allowing for such arbitrary actions. Next, very importantly, now they said, now if you want to maintain law and order and if you want to curb arbitrariness, this means that there should be certain set guidelines, there should be a certain procedure, right, which should be put into place. Now very importantly they said following due process is very important, right। justice का idea, justice है ना, justice एक बहुत ही important constitutional ethos है, and this is one of the founding grounds, one of the founding elements of our constitution, and justice in its various facets जो है हमारी constitution आपको promise करती है। and justice acquire करने का एक पहला सबसे important क्या मीन्स है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया हो, राइट, कि जो स्पिरिट है, राइट, उसको फॉलो करते हुए एक प्रॉपर प्रोसेस, एक बहुत ही फेयर, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो है ये एक्शंस इम्पार्ट किए जाए। एंड देयरफॉर ड्यू प्रोसेस को हाईलाइट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस which are being put into place as far as demolitions are concerned, and if these guidelines are not followed, that means due process has not been followed through, and therefore this will be an unjust action, right? So it is very very important here कि हमने जो है certain guidelines जो है उनको follow करना है। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला सबसे पहले तो मिनिमम 15 दिन का प्रायर नोटिस जो है मस्ट बी गिवन टू द सेड पर्सन जिनकी प्रॉपर्टी जो है आप डिमोलिश करने की बात कर रहे हैं, राइट। सो यू हैव टू सेंड देम अ नोटिस 15 days प्रायर टू द डिमोलिशन बीइंग कैरीड आउट, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट दैट द ऑक्यूपायर और द ओनर रिसीव्स द नोटिस, ठीक है। तो आपने जो है जब जिस दिन उनको नोटिस मिला उसके 15 दिन तक आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। Very importantly, the notice must also contain the details of the structure, right? कि कौन सा structure है जिसकी हम demolition की बात कर रहे हैं, क्यों हम कह रहे हैं कि ये demolish होगा, and then also to set up a date for personal hearing, right? जिसके अंदर the said occupiers or the owners can contest, right? They can say why this is wrong. Very importantly, they also said that ये जो पूरी proceedings होंगी demolition की, they have to be videographed ताकि प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी जो है मेंटेन की जा सके। एंड साथ ही में उन्होंने लास्ट में क्या कहा कि देखिए ये सब फॉलो करे आज का, राइट, प्राइवेट लैंड जो है बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी है, आपको दी गई है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी बोला था कि आपके जो नए कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 300A के अंदर जो आपके पास प्रॉपर्टी का राइट है, अगर हम इस तरह से डिमोलिशन को अलाउ कर देंगे तो वो राइट टू प्रॉपर्टी का कोई मीनिंग ही नहीं बचा, उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का कोई मीनिंग ही नहीं बचा, राइट। हाउएवर उन्होंने बोला कि देखिए ये डायरेक्शंस जो है एप्लीकेबल नहीं होंगी अगर ये एक अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है जो कि पब्लिक लैंड, मतलब कोई प्राइवेट लैंड नहीं है बल्कि गवर्नमेंट के लैंड के ऊपर ये इलीगली की गई है, या फिर ये डिमोलिशन का जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी एक कोर्ट ऑफ लॉ ने पास किया है, राइट, मतलब ऑलरेडी एक एडजुडिकेटरी प्रोसेस के थ्रू जो है दिस हैज बीन पास्ड
एंड देयरफॉर इट विल बी वैलिड बिकॉज ये किसी एग्जीक्यूटिव ने नहीं बल्कि जुडिशरी की ब्रांच ने जो है ये ऑर्डर पास किया है. सो इन दो कंडीशंस में जो है ये गाइडलाइंस, ये डायरेक्शंस जो है लागू नहीं होंगे. राइट, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. नेक्स्ट up very importantly another part that they said in India and the constitution guarantees rights of individuals, and very importantly they say not just the rights of normal ordinary innocent civilians but even those who are accused. In fact अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स तक में देखते हैं, हमें पता है that there are certain rights जो कि अक्यूज्ड के पास भी जो है होते हैं. राइट, उन तक के पास जो है ये सर्टेन राइट्स जो है इम्पार्ट किए जाते हैं. एंड देयरफॉर इवन दीज राइट्स गारंटी टू दोज हु आर अक्यूज्ड और दोज हु आर बिहाइंड द बार्स हु आर कन्विक्टेड, उनको भी आप किसी भी तरह से फ्लाउट नहीं कर सकते हैं. अब इसी के अंदर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक और स्टांस दिया. उन्होंने बोला कि देखिए जब हम क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, राइट, जिसके थ्रू जो है क्रिमिनल जस्टिस की बात की जाती है, जो रेक्टिफिकेटरी या करेक्टिव जस्टिस है कि अगर किसी ने कोई गलत चीज की है उसकी भरपाई करने के लिए उन्हें प्रोपोर्शनल जो है पनिशमेंट सुनाई जाएगी. वो कहते हैं एक सेटल्ड प्रिंसिपल है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का दैट अक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. ये इंडिया के क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस अराउंड द वर्ल्ड जो है उसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. राइट, दैट द बर्डन लाइज अपॉन यू टू प्रूव दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी. राइट, जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता उनको इनोसेंट माना जाता है. देयरफॉर जब तक एक एडजुडिकेटरी प्रोसेस फॉलो करके उस अक्यूज्ड को कॉन्विक्ट नहीं किया जाता, तब तक वो स्ट्रक्चर अगर आप ऐसे ही डिमोलिश कर रहे हैं तो पहले तो राइट्स ऑफ द अक्यूज जो है उन्हें भी फ्लाउट कर रहे हैं. और उससे भी बुरी चीज क्या है कि चलिए अगर हम मान भी लें वो अक्यूज ने वो क्राइम किया तो फिर वो भरपाई करेगा, है ना. इट इज अपॉन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल टू बी पनिश्ड. राइट, व्हाई आर द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स पेइंग फॉर इट? Right, in that particular property, in that particular structure, in that particular house, that person's family will also be residing. Therefore, you are imparting punishment not just to the person concerned, but to a bunch of other people as well, which is absolutely incorrect, which is not allowed under the Indian Constitution. Furthermore, they also said कि जो directions हैं, जैसे कि हमने पहली बात कर ली थी कि ये directions सिर्फ तब लागू किए जाएंगे अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, बट अगर ये जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन पब्लिक लैंड पे है या ऑलरेडी कोई कोर्ट जो है ये ऑर्डर पास कर चुका है, फिर ये एप्लीकेबल नहीं होंगे. वेरी इंपॉर्टेंटली अपार्ट फ्रॉम दिस, वन ऑफ द अदर थिंग्स, आर्बिट्ररीनेस के साथ क्या आता है? आर्बिट्ररीनेस के साथ आता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के ऑफिसर्स हैं, पब्लिक ऑफिसर्स हैं, वो अपनी जो है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए हैं. जिसका मतलब क्या है that sometimes public officials can act in a very high-handed manner, right? तो जो उनको पसंद नहीं है या जो उनकी पर्सनल प्राइवेट आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते हुए वो ऐसे आर्बिट्ररी डिसीजंस जो है ले रहे हैं और वो कहते हैं कि ये सही नहीं है. राइट, हर पब्लिक ऑफिशियल एक सिविल सर्वेंट है. राइट, आप गवर्नमेंट के लिए आप गवर्नमेंट की तरफ से लोगों के लिए काम कर रहे हैं, and therefore this high-handedness is not correct, and therefore one needs ओवरसाइट. तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर हमारे डायरेक्शंस को, हमारी गाइडलाइंस को कोई भी ऑफिशियल ने फ्लाउट किया, देन दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल उनको हम लायबल मानेंगे फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इसी के तहत उन्हें प्रोसिक्यूट भी किया जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंटली, इफ दीज पब्लिक ऑफिशियल्स एंड अप डिमोलिशिंग अ प्रॉपर्टी विदाउट फॉलोइंग गाइडलाइंस, देन इनको ही अकाउंटेबल ठहराया जाएगा एंड इन पे ही लाइबिलिटी आएगी टू रेस्टिट्यूट द डिमोलिश प्रॉपर्टी. जो आपने खराब किया उसे ठीक कीजिए एंड यू विल ऑल्सो हैव टू पे अ कॉम्पेंसेशन. तो आपकी सैलरी से जहां मर्जी से वो आए, दैट विल बी ऑन योर हेड. तो यहां पे अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी बनाने की जो है एक इंपॉर्टेंट बात की गई है. ठीक है. देन वेरी इंपॉर्टेंटली, अगेन ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगेन यहां पे एम्फसाइज किया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इंडिविजुअल्स के, जैसे कि हमने बात की थी अक्यूज्ड के भी, कॉन्विक्टेड के भी एंड बाकी लोगों के भी. यहां पे उन्होंने बोला कि देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस का लिबर्टी एंड राइट्स एक इंट्रिंसिक हिस्सा है. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली फॉलोइंग दैट थ्रू, आप आर्बिट्रेरीली अगर किसी प्रॉपर्टी को, घर को डिमोलिश कर रहे हैं
तो ये किसका उल्लंघन करता है? राइट टू शेल्टर का। और ये राइट टू शेल्टर आपने याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ guaranteed under Article 21 of the Indian Constitution, right? So अगर आपको क्वेश्चन आ जाए that right to shelter can be placed under which article of the Indian Constitution, right? Within fundamental rights, ये कहाँ पे होगा? आपके आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। फर्दरमोर कोर्ट ने स्ट्रेस किया कि स्टेट की जो पावर है ये सिर्फ लॉफुली एक्सरसाइज होनी चाहिए with full responsibility and accountability ताकि public trust maintain किया जा सके। And that is why it is very important that all those officers who are found to be following incorrect mechanisms, उन पे जो है accountability आएगी कि वो भरपाई करें of all the incorrect actions। ठीक है, तो आर्टिकल जैसे कि हमने बात की थी 300A को उन्होंने जो है स्ट्रेस किया है, राइट टू प्रॉपर्टी को, आर्टिकल 21 राइट टू शेल्टर को उन्होंने स्ट्रेस किया है, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की है। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसेट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि इन्होंने अंडरलाइन किए हैं इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, राइट? सो होपफुली आपको ये सब समझ में आ गया होगा। फॉर एनी फर्दर क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। जाने से पहले जस्ट टू लेट यू नो कि अगर आप ऐसे करंट अफेयर्स पे मिस आउट कर रहे हैं या समझने में या इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिराइव करने में आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ अ PSIR करंट अफेयर्स कोर्स जहां पे आपको मंथली लेक्चर्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट? सो एवरी मंथ एंड इनफैक्ट जनवरी 2023 से लेके मेंस 2025 तक आपके पास फुल एक्सेस होगा ऑफ ऑल दीज करंट अफेयर्स लेक्चर्स, इनसे जुड़ी PDFs, राइट? इनके अंदर जो लिंकेजेस है, स्टैटिक कंटेंट के साथ जो इंटरलिंकेजेस है, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। Apart from this, if you are someone who's already prepared the basics of PSIR course and now you're looking for regular practice, तो आप हमारी डेली प्रैक्टिस सीरीज फॉर 2025 जो है उसका हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे ओवर 160 क्वेश्चंस का एक्सेस आपको मिलेगा इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? साथ ही में शेड्यूल वाइज जो आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, इवैल्यूएट करके आंसर्स आएंगे, मॉडल आंसर्स आपको मिलेंगे, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू जो है गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, राइट? ऑल दिस एंड मोर जो है यू कैन अवेल विद इन दिस कोर्स। नाउ इन दोनों कोर्सेज की और इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, या फिर हमें एक मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर वेरी इंपॉर्टेंटली यू कैन ऑल्सो विजिट आवर साइट at sleepyclasses.com, राइट? बाकी गुरपूरब की बहुत बहुत बधाइयां टू ऑल दोज हु आर सेलिब्रेटिंग, एंड ऑल्सो कीप फॉलोइंग स्लीपी क्लासेस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।